Anyone having any doubt in thread or in scheduling, in definition of operating system, ECB, or any point that we have discussed till now? Anyone? Anyone having any doubt, any confusion? Kindly let me know. Today we will discuss deadlock, and I hope in this week, first or second unit will be finished. Deadlock is the last topic. So let me share my PPT. Just wait. Yes, is it visible? Yes, sir, visual. Okay. So deadlock, it is a real world problem. Real world would be traffic which is going only in one direction. तो मैंने एक real world example या problem लेकर deadlock को बताने की कोशिश किया है. सब जैसे फिगर मैंने आज शो किया हुआ है. Let me just yes. So suppose this is a traffic problem which is going in only one direction, and suppose there is a bridge. So this one is a bridge. Let me use the notation. This one is a bridge. Okay. So this is going one this direction, this going this direction, but bridge की वजह से क्या होना पड़ेगा? दोनों को कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ पे. अब मान लीजिए दोनों एक साथ आ गए, तो अब क्या हो गया? अगर से कोई भी मूव नहीं करेगा बैक, तो क्या हो पाएगा? डेडलॉक हो गया, हुआ या नहीं? अगर से both these vents and these vents are not agreed to move back, तो क्या होगा? Deadlock. And consider this is as a resource. This bridge as a resource. ये ब्रिज हमारा है, ये क्या है? हमारा रिसोर्स है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या डेडलॉक होगा? तो इसको हमने यहाँ बताया हुआ है. Here is the bridge is considered as resource. So when deadlock happens, it can be easily resolved if one car backs up, means preempt a resource and return back. यानी रिसोर्स को कार ने ब्रिज को छोड़ दिया, प्रीम्प्ट कर दिया. कोई भी एक कार हो सकती है. Several cars may have to back up if a deadlock or situation occurs. So this is a simple example of deadlock. Or deadlock we can imagine with the help of this traffic example. Okay. So starvation is possible. So what is the difference between starvation and deadlock? Yes. कौन बताएगा? बताइए बेटे. डेडलॉक और स्टार्वेशन में क्या डिफरेंस है? यस. एनीवन? अगर रियल वर्ड होता है डेडलॉक. डेडलॉक रियल वर्ड हो Traffic सकता which है? is going on. नो, रियल वर्ड क्या है? Yes. दोनों ही वर्ड हो सकते हैं. Traffic. Yes. दोनों ही रियल वर्ड हो सकते हैं बेटे. कोई बताएगा? और स्टार्वेशन का मतलब होता है वेटिंग टाइम आपका फाइनाइट होगा, लॉन्ग हो सकता है. डेडलॉक में Yes. वेटिंग टाइम इज इनफाइनाइट, मींस कोई प्रोसेस होगी ही नहीं. ओके, क्लियर? यस बेटे, क्लियर है? तो डेडलॉक में क्या होगा? वेटिंग टाइम इनफाइनाइट, बट स्टार्वेशन इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज लॉन्ग. हो सकता है आपको एक दिन दो दिन वेट करना पड़े, बट आपका टर्न आ ही जाएगा. So this is the main difference between starvation and I mention all these differences in the next slide. Yes, here you can see deadlock starvation. So deadlock situation occurs when one of the processes got blocked. Starvation is a situation where all the low priority process got blocked and the high priority process. जैसे आपने FCFS है, FCFS में तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जैसे मान लीजिए, तो प्रायोरिटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर से आपके पास जॉब ज्यादा है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी को वेट ज्यादा करना पड़ता है. प्रोसेस हैविंग लोवेस्ट प्रायोरिटी हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम
as compared to the process having higher priority. तो यहाँ starvation possible है. Deadlock is an infinite process. जैसे मैंने बताया, starvation is long waiting but not an infinite. Every deadlock always has starvation. Deadlock होगा तो starvation है, but every starvation does not necessarily have deadlock. हो सकता है जब हायर प्रायोरिटी की जॉब हो जाए तो लोअर प्रायोरिटी का नंबर आ जाए. Deadlock happens when mutual exclusion, hold and wait, air preemption and circular wait do not occur simultaneously. So these four conditions are necessary conditions for the deadlock that we will see in the coming slide. Mutual exclusion, hold and wait, preemption, no preemption and circular. There are three conditions in process synchronization. कौन थी वो बताइए. Process synchronization पे तीन condition थी ना. Yes, sir. कौन सी बताइए. So mutual exclusion, progress, or bounded waiting. इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा. यहाँ भी चार कंडीशन है, वहाँ तीन कंडीशन. एग्जाम में अगर से आए तो स्टेप मत दीजिएगा अपना. इसका उसमें लिखो, उसका ठीक है. So this is the definition, or you can say formal definition of deadlock in operating system. Deadlock is a situation where the execution of two or more processes is blocked because why these two processes are blocked, because each process holds some resources and waits for another resource held by the. So मैंने आपको बताया था कि arrow. Let me just revise this diagram. Arrow means suppose this denote process. Okay, circle denote process. And this denote resource. Rectangle denote resource. Okay, and then arrow from process to resource is this one, from process to resource. Direction क्या है? तो तब क्या हुआ? This is waiting for this resource, or we can say requesting resource. And arrow from resource to process. It is meaning of this is this resource is allocated by process, or you can say resource assigned to process, or captured by process, or held by process. So resource one is held by process P1, which means arrow कहाँ से होगी, डायरेक्शन क्या होगी, from resource to process. If process is waiting or requesting some resource, then the direction is from process to resource. Okay, तो resource से process की तरफ अगर से arrow की direction है, तो इसका मतलब वो resource captured हो चुका है, hold किया जा चुका है, allocated हो चुका है, या assign हो चुका है by process. इसकी तरफ arrow है, और अगर से process से arrow निकल रही है और resource की तरफ जा रही है, उसकी direction means that resource is requested by that. Okay, clear? So this is the symbol interpretation of a graph. Or we can say acyclic graph. So यहाँ पे देख लीजिए, process P1 is waiting for resource 2, which is already allocated to resource process 2, and process resource 1 is requesting by process P2, which is already allocated to resource process P1. तो यहाँ पे क्या है, deadlock हो गया, because process P1 needs resource 2, and if it needs resource 2, then after completion of its job, process P1 release all these two resources, but resource process P2 follow same procedure. बट यहाँ पे क्या है, दोनों वेट कर रहे हैं दूसरे का कि प्रोसेस P1 चाह रही है कि रिसोर्स 2 हमको मिल जाए, प्रोसेस P2 चाह रही है कि रिसोर्स 1 मिल जाए, क्योंकि रिसोर्स 1 ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोसेस P2 के द्वारा, और रिसोर्स 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोसेस P2. ठीक है, ये डेडलॉक. तो P1 होल्ड्स तो में जो कहा मैंने लिखा हुआ. ठीक है, so none of the two processes can complete and release the result. Thus both processes keep getting infinitely. This is a deadlock. Anyone having any doubt? Yes. किसी को कोई डाउट है? No, sir. आकिफ? Yes, sir. डाउट बेटे, any confusion? Yes, sir. कोई डाउट है, कोई confusion? No, sir. So now we will see what are the
what are the some conditions that must occur for deadlock? So there are four necessary conditions for occurrence of a deadlock. That one is the mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. So deadlock can arise if the above four conditions hold simultaneously. अगर से चारों कंडीशन एक साथ satisfy कर रही हैं, then deadlock must occur. Okay? Deadlock occur होगा ही होगा. तो चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हो तो हम आगे स्ट्रेटजी पढ़ेंगे. डेडलॉक सिस्टम में ना हो उसके लिए इन चारों कंडीशन में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं ना. विच वन इज द सॉफ्ट टारगेट. हम चारों में से कौन कौन सा कंडीशन को हम कोई भी कंडीशन अगर से हमने क्या कर दी, ब्रेक कर दी, देन डेडलॉक विल नेवर अकर. बिकॉज फॉर डेडलॉक हैज टू अकर these four conditions must satisfied simultaneously. क्लियर है. ये अपने दिमाग में माइंड में रखिएगा कि these four conditions hold and wait, no preemption, circular wait and mutual exclusion, all these four conditions are satisfied simultaneously. Let me clear this notation. So first one is mutual exclusion. So there exists at least one resource in the system which can be used by only one process at a time. तो अगर से आपका सिस्टम है उसमें एक ऐसा रिसोर्स है जो शेयरेबल मोड में नहीं, तो अगर से शेयरेबल मोड में नहीं है एंड टू प्रोसेस रिक्वेस्टिंग दिस रिसोर्स एट द सेम टाइम एंड दिस रिसोर्स इज होल्ड बाय एनी अदर प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, दूसरा सिचुएशन तो हो नहीं होगा. और ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ रिसोर्स बाय डिफॉल्ट बाय नेचर क्या होते हैं, नॉन शेयरेबल मोड में होते हैं. जैसे आपका पेन ड्राइव, अगर से पेन ड्राइव आप यूज कर रहे हैं तो हम यूज नहीं कर सकते. आपका प्रिंटर है, प्रिंटर इज स्कैनर, दे आर वर्किंग इन नॉन शेयरेबल मोड. ठीक है. तो इफ देयर एग्जिस्ट नो सच रिसोर्स डेडलॉक विल नेवर अकर. ऐसा होता नहीं है. रियल कंडीशन, रियल सिनेरियो, वी मस्ट हैव अ रिसोर्स that is its nature is non-shareable. So printer is an example of a resource that can be used by only one person, right? Now second one is hold and wait. So hold and wait में क्या होगा, there must exist a process which holds some resource and waits for another process held by some other process. तो ऐसा रिसोर्स, ऐसी प्रोसेस है जो एक रिसोर्स को ऑलरेडी होल्ड किए हुए और दूसरे रिसोर्स का इंतजार कर रही है एंड दिस रिसोर्स आर कैप्चर्ड बाय एनी अदर प्रोसेस. ठीक है. ये होगा होल्ड एंड वेट. अगर आपने एक प्रोसेस है जो एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और दूसरे रिसोर्स क्या कर रही है, वेट कर. क्लियर है. तो ये सब कंडीशन टेक 30 सेकेंड एंड लीड्स नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. इसे पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. हो ना. अच्छा, but just wait, let me give 2 minutes. Just Okay, sir. okay. तो anyone no preemption का मतलब क्या है? Once the process has been allocated to the process, resource has been allocated to the process and it cannot be preempted. मतलब preemption में बताया था आपको कि अगर से एक रिसोर्स किसी प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है तो वो रिसोर्स उस प्रोसेस से जब तक नहीं ले सकते जब तक वो प्रोसेस वॉलंटरली खुद से ही छोड़ना ना चाहे. ठीक है. ये नो प्रीएम्पशन. आई समझ बात. is the meaning of Yes. no preemption. So process
रिलीज द रिसोर्सेज, अपनी चॉइस पे रिलीज करेंगे, तो मन करेगा तो करेंगे, दिस इज नो केस। तो process must release the resource voluntarily by itself. Circular wait, all the process must wait for the resource in a cyclic manner, where last process waits for the resource held by the first process. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था हमारे पास यहाँ पर। आप देख सकते हैं साइक्लिक मैनर में रिसोर्स क्या कर रहे हैं, प्रोसेस वेट कर रहे हैं, ये हमारा सर्कुलर वेट। So these are four conditions that must occur simultaneously, must hold simultaneously for the occurrence of deadlock. Now we will see how we can uh, make a system free from deadlock Sir. by negating any one condition. हाँ, yes. सर आपने बोला इसमें से ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए डेडलॉक के लिए। हाँ, साइमल्टेनियसली एक साथ, अगर तो कोई भी एक नहीं हो डेडलॉक नहीं हो। सर इसमें तो अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी सर डेडलॉक लग सकता है इसमें क्यों सर? नहीं, अगर सर देखिए मान लिया आपने मुझे मान लिया सर्कुलर वेट कहा आप, ठीक है जी जी हमारे प्रीएम्पशन अगर से पॉसिबल है तो हो पाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैं एग्जांपल आता हूँ, अगर से प्रीएम्पशन पॉसिबल है तो क्या होगा, ये प्रोसेस इसको क्या करें, रिसोर्स 2 इज प्रीएम्प्टेड बाय रिसोर्स 1 इज प्रीएम्प्टेड फ्रॉम प्रोसेस P1। आकिफ, रिसोर्स 1 इट कैन preempt दिस रिसोर्स ना, अगर से हम इसको प्रोसेस P1 से रिसोर्स ले लिया वापस, तो नाउ प्रोसेस P2 फिनिश देयर जॉब, है नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या, डेडलॉक नहीं हुआ। जब प्रोसेस P1 को रिसोर्स 1 में मिल गया, रिसोर्स उसके पास पहले से था ही, इसने अपना जॉब फिनिश किया, इसके बाद दोनों रिसोर्स क्या किया, रिलीज कर दिया, करने के बाद प्रोसेस P1 ने इसको यूज कर लिया दोनों को। देन नो प्रीएम्पशन क्या है, अगर प्रीएम्पशन अलाउड है देन डेडलॉक से लेकर, इसका मीन सर इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना पड़ेगा एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। ओके सर। प्रीएम्पशन भी आप नहीं कर सकते, अब ऐसा कंडीशन अगर से प्रीएम्पशन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, डेडलॉक तो नहीं होना है भाई। अगर से एक खिलौना है, बच्चे खेलना चाह रहे हैं, वो दोनों बच्चे एक टाइम पे तो खेल नहीं पाएंगे, अगर ऐसा कुछ खिलौना है तो आप किसी को मना करेंगे, प्रीएम्पशन करेंगे कि बेटा अभी तुम बाद में खेल लेना। अगर से वो भी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो खिलौना है तो आप छुपा कर रखेंगे, यस तो दोनों कंडीशन चारों कंडीशन साथ में होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर? यस सर यस सर क्लियर। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? देखिए मैंने मुझे मतलब ये कि रिसोर्स 1, तो वी हैव ओनली वन कॉपी ऑफ रिसोर्स 1, सपोज वन प्रिंटर हमारे पास है, तो दैट इज allocated by process P1, तो all process has to wait, hold and wait। देखिए प्रोसेस P2 holding resource R2 R3 and making a request for resource 1, ठीक, then no preemption, it means resource 2 is allocated to process P2 and process P2 is requesting for resource 1 which is allocated to process P2। सर्कुलर वेट में क्या है, लास्ट रिसोर्स इज, सपोज रिसोर्स 2 is the last resource which is held by process P1 and resource 1 is held by process P1, held by process P2 and request by process P1। सर्कुलर वेट समझने के लिए मैंने बता दिया आपको, सब में डिफरेंस आपको दिखते हैं। यहाँ पे सर्कुलर वेट नहीं है, प्रीएम्पशन में सर्कुलर वेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस प्रोसेस P1 is holding the resource R1 which is not the last resource, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक मैनर। नाउ सर्कुलर वेट जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ऑल दीज फोर कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन फेल देन सिस्टम कैन बी इंश्योर्ड डेडलॉक फ्री। तो हमारा मेरा फोकस क्या होगा, हम सब लोगों का थ्रू प्रोग्रामिंग हम ये इंश्योर कर सके कि ऑल दीज फोर कंडीशन, वन ऑफ दीज फोर कंडीशन हम क्या करें, इसको निगेट कर सकते। तो मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, कैसे हम डेडलॉक को हैंडल करें, तो वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, प्रिवेंशन, deadlock avoidance, deadlock detection and recovery, and deadlock ignorance. So these are four strategies which are used by handling the deadlock: prevention, avoidance, detection and recovery. And you will see these four strategies one by one in detail. First one is the deadlock prevention. ये क्या होता है? This strategy involves designing a system that violates one of the four conditions.
तो ये कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। दिस इंश्योर दैट सिस्टम रिमेन फ्री फ्रॉम डेडलॉक। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो नाउ लेट्स सी दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी violated or not. We are able to negate this condition. It is possible or not. So to violate this condition, all the system resource must be such that they can be used in shareable mode. अगर से शेयरेबल मोड में हो पाएंगे तभी हम इसको वायलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बट ऐसा होता नहीं। In a system there are always some resource which are mutually exclusive by nature, like printer। मैंने एग्जांपल दिया गया, वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो शेयरिंग मोड में यूज नहीं कर सकते, एक साथ हम एक प्रिंटर को दो प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। सो दिस कंडीशन कैन नॉट बी वैलिड। क्लियर? तो भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो हम कर ही नहीं सकते। क्लियर नहीं क्लियर है? यस सर। बिकॉज बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, अब देयर एग्जिस्ट सम रिसोर्स व्हिच आर वर्किंग इन नॉन शेयरेबल मोड। तो जब वो शेयरिंग में काम नहीं कर पाएंगे तो हम फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे इंश्योर करते हैं? तो ये कंडीशन कभी वैलिड नहीं कर सकते। जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो इस कंडीशन को टच ही नहीं करना है। नाउ वी हैव थ्री मोर कंडीशन, थ्री लेफ्ट कंडीशन था। जो नेक्स्ट आते हैं होल्ड एंड वेट। इसको हम दूर कर सकते हैं। वी हैव सो मेनी अप्रोचेस फॉर दिस। द फर्स्ट वन इज अप्रोच वन। अप्रोच वन क्या है? A process has to first request for all the resources it requires for execution. Once it has acquired all the resources, only then it can start its execution. इसका मतलब क्या है? Suppose process P1 needs 4 resources, तो प्रोसेस P1 अपना एग्जीक्यूशन जब तक स्टार्ट नहीं करेगी जब तक इसको 4 के 4 रिसोर्सेज मिलना चाहिए। ठीक है? इसको मैं इस अदर टर्म्स में कहूँ कि अगर से आपको भूख लगी है और आपको 3 रोटी की रिक्वायरमेंट है, यू नो कि यू नीड 3, एटलीस्ट 3, अब वी कैन से 3 रोटी आपको चाहिए, तो आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको 3 रोटी मिलना चाहिए। तो होल्ड एंड वेट। ठीक है? दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट प्रोसेस डज नॉट होल्ड सम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 रोटी मिल गई, देन यू आर नॉट मेकिंग एनी अदर रिक्वेस्ट फॉर द ब्रेड। आप रोटी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको 3 मिल गई, इतनी आपको जरूरत थी। तो आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स किसी के अगर से किसी और ने कैप्चर किया होगा तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? यस सर, लेकिन सर इसमें फिर भी तो डेटा है। ड्रॉबैक क्या है इस अप्रोच का? इट इज लेस एफिशिएंट एंड इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल सिंस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इन एडवांस व्हिच रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड इन। तो ये फिजिबल भी नहीं है और लेस एफिशिएंट। होल्ड अप्रोच टू क्या है? A process is allowed to acquire the resources it desires at the current moment. मान लीजिए at this point of time you need 2 resources, so okay, you can get 2 resources. After acquiring the resource, it starts execution. तो आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। Now before making any new request, it has to compulsorily release all the resources that hold currently. तो आपने अगर से 2 रिसोर्स ले लिया, तो if you are needed, if you need some other resource, then you have to release all the already allocated resource, उसके बाद ही आप रिक्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है? ऐसा नहीं बात। Yes, sir. जैसे मान लीजिए आपको 2 प्रिंटर चाहिए थे तो आपने 2 प्रिंटर यूज कर लिया, बट आपको एक नया प्रिंटर चाहिए। उसके पहले क्या करेंगे? बिफोर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट यू हैव टू रिलीज ऑल दीज 2 रिसोर्सेज दैट इज प्री ऑक्युपाइड बाय यू, ओनली देन यू कैन मेक a न्यू रिक्वेस्ट। ओके? Yes. इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? कि नया रिक्वेस्ट आपको करने से पहले आपने जितने रिसोर्स ले रखे थे उसको रिलीज कीजिए पहले। Then approach 3, a timer is set after the process acquire any resource. तो मान लीजिए हमने कहा कि भाई प्रोसेस P1 is needed 2 रिसोर्स, तो टाइमर दे दिया भाई आप 5 सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं या 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ व्हेन टाइम राउंड रॉबिन फैशन a timer expires, the process has to compulsorily release the resource. जैसे आप तो खिलौना था, आपने कहा ठीक है ये बच्चा खिलौना खेलेगा, इसको दे दीजिए, तो आफ्टर 5 मिनट्स आप उससे वो टॉयज ले लेंगे, तो आपने लिया, सेकंड बच्चे को दे दिया, ये भी फिजिबल है। क्लियर? तो वी कैन रिमूव वी कैन वायलेट दिस कंडीशन। क्लियर है? यस। Yes, sir. Clear, sir. प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? तो अप्रोच 2 जो है, अब मान लीजिए कि एक प्रोसेस को चाहिए था 10 रिसोर्स और 9 रिसोर्स उसके पास पहले से थे। अब जब उसको 10वां रिसोर्स चाहिए तो
उसको 9 के 9 रिसोर्स रिलीज करने पड़ जाएंगे, और उसके बाद 9 रिसोर्स को रिलीज करना, उसके बाद 10वें रिसोर्स को फिर 10 रिसोर्स को लेना, सारे रिसोर्स को एक साथ फिर लेना। तो ये रिलीजिंग एंड एक्वायरिंग द रिसोर्स टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ये होता है ना कि अगर से आपको सपोज 5 ब्रेड्स की रिक्वायरमेंट है और आपको एक रिक्वायरमेंट और महसूस हो गई, तो अच्छा है कि आपको एक रिक्वायरमेंट एक ब्रेड दे दिया जाए, जिससे आप खा के अपना काम फिनिश कर दें, अपना काम करने फिर आप अपना सेकंड काम करें। अब इससे ये अच्छा तरीका नहीं है कि 5 के 5 रिसोर्स आपसे लिया जाए, फिर आपको 6 रिसोर्स एक साथ, फिर जब वो रिसोर्स फ्री हो जाएगा तब आपको दिया जाएगा। इससे अच्छा था कि हम एक रिसोर्स आपको दे देते, आपका काम पूरा हो गया होता, उसके बाद आगे की बढ़। तो अभी देखेंगे कि होल्ड एंड वेट कैन बी वायलेटेड, but we have two other conditions. Let's see what happens. No preemption. This condition can be violated by forceful preemption. तो इसको हम फोर्सफुल तरीके से ही कर सकते हैं कि नो, हमको ये, अब अगर से हमें ये जरूरत महसूस हुई, ये रिसोर्स को हमको इस प्रोसेस से छीनना है या प्रीम्प्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम इसको कर सकते हैं। कंसिडर प्रोसेस होल्डिंग सम रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट अदर रिसोर्स दैट कैन नॉट be immediately allocated to it. Then by forcefully preempting the currently held resources, the condition can be violated. ये हम कर सकते हैं। Now circular weight. So this is the very good condition, a very feasible condition that can be violated. So in all these 4 conditions, we have one condition that is never violated, that is mutual exclusion. Hold and wait can be violated. No preemption can be violated. Circular weight also. But circular weight क्या है हमारे पास? ये क्या है? यही कंडीशन जिसको हम वायलेट कर सकते हैं। तो दिस कंडीशन कैन बी वायलेटेड बाय नॉट अलाउइंग द प्रोसेस टू वेट फॉर रिसोर्स इन साइक्लिक मैनर। कैसे करेंगे ये देखते हैं यहाँ। टू वायलेट दिस कंडीशन द फॉलोइंग अप्रोच इज फॉलो। A natural number is assigned to every resource. मान लेते हैं हमारे पास 5 रिसोर्स थे, तो 1 2 3 4 5 में नंबरिंग कर दी उसकी। And we ensure that each process is allowed to request for the resource either in only increasing or only decreasing order of the resource number। माने हमने 1 2 3 4 5 कर दिया, और हमने ये भी कह दिया कि अगर से आपको रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना है इसी प्रोसेस को, तो वो तो इस नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक कोई रूल फॉलो होगा। अगर से हमने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑल द प्रोसेस हैज टू फॉलो दिस रूल। ठीक। In case of increasing order is followed, let's assume that increasing order is followed. If a process requires lesser number resource, then it must release all the resource having larger number and vice versa। मान लीजिए प्रोसेस P1 ने क्या किया? एक प्रोसेस P1 ने 1 और 2 रिसोर्स दे रखे हैं। Let me use annotation। ये हमारे पास 5 रिसोर्स और प्रोसेस। अब हमने क्या किया? इसको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, जो भी चाहे वो नंबरिंग कर सकते हैं आप, जहाँ से चाहे स्टार्ट करो। हमने कहा कि P1 ने P2 को allocated, P2 is allocated and the R2 and R3, these two resources are allocated by process P1। Now suppose, तो P1 क्या कर सकता है? अब P1 रिक्वेस्ट 1 की नहीं करेगा, ठीक है, 1 की नहीं करेगा, किसी करेगा? इससे ज्यादा नंबर कर सकता है, तो 4 की कर सकता है, 5 कर सकता है। इन केस अगर से इसको जरूरत पड़ी 1 की करने की, क्या करेगा? पहले इन सबको रिलीज करेगा, फिर 1 की करेगा। क्लियर है? यस। पर सर उससे कोई ऐसा टास्क, सर अगर उसे कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना हो जिसमें उसे सेकंड और थर्ड रिसोर्स भी चाहिए और सर फर्स्ट भी चाहिए, तो सर कैसे परफॉर्म करेगा? अब वो शुरुआत कहाँ से करेगा? 1 से करेगा, पहले तो 1 लेगा वो। जी सर। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो करना है ना। मान लिया उसने 1 लिया, तो फर्स्ट आ गया, फिर सर सेकंड और थर्ड सर एक्सपेक्ट कर लेगा। सेकंड थर्ड उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, ओके सर, सबको यही फॉलो करना है। P2, अब P2 को चाहिए होगा तो 1 तो ऑलरेडी एलोकेटेड, तो P2 1 के लिए करेगा। जब तक 1 फ्री नहीं होगा तब तक ये आगे वाला रिसोर्स होल्ड नहीं कर पाएगा।
जी sir. जो है आगे वो रिकॉर्ड, क्योंकि वन को अभी मिला ही नहीं है, तो टू कहाँ से वो कर लेगा, फोर कहाँ से कर लेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने ये कर दिया है कि जब तक उसको एलोकेट, अभी इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स वन, बट इट इज अवेलेबल P1। जब तक P1 खत्म नहीं कर देगा तब तक अगर तुम्हारे P1 ने इसको रिलीज कर दिया तो वन P2। क्लियर है? So we can ensure mutual free from mutual exclusion system, which is free from mutual exclusion by negating this condition. This is a very easiest condition. आप देखिए सॉफ्ट टारगेट हमारा सर्कुलर फिट है, तो अगर से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप ये कह सकते हैं सर्कुलर रेट इज इजियर टू मैनेज, ठीक है, बाय यूजिंग दिस अप्रोच, नंबरिंग करके। Yes sir, clear. This approach is most practical approach and implementable. However, this approach may cause starvation. Starvation हो सकता है, but never lead to deadlock कभी नहीं हो सकता है। प्रोसेस P2 P1 रिसोर्स 1 को एलोकेट करने के लिए वेट करना पड़ सकता है लंबे टाइम तक, बट डेडलॉक, ठीक है। तो स्टार्वेशन इज पॉसिबल, प्रोसेस हैज टू वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट डेडलॉक इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? Yes sir, clear. कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है, तो इसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे। बेटे आप लोग की अटेंडेंस बहुत दूर रह रही